Today we will study about the lesson number 10, Science, class 10, Light Reflection and Refraction, part 2. Today's topic is reflection of light by mirrors. You know the phenomena of reflection of light by the mirrors. In case of the plane mirror, the image is formed which is virtual and erect. Here the mirrors, plane mirror, concave mirror and convex mirror. How image is formed in all three types of the mirrors? You know, in case of the plane mirror, the image formed is virtual and erect, and in case of the spherical mirrors, that is the concave mirror and the convex mirror, the image formation by the reflection of the light. First, we see some terms related to these reflection made by the spherical mirrors. About the spherical mirrors, I told you that the concave mirror and the convex mirror are those whose reflecting surfaces are the part of a hollow glass sphere. The mirrors are called the spherical mirrors or the concave mirror or convex mirror. The few terms related to this reflection of light by the mirrors are pole, represented by the letter P. It is lie in the center of the mirror as shown above. Next is the center of curvature. Center of curvature represented by C as shown above. It is the center of the sphere. It is the center of the sphere. The sphere is that sphere. The mirror is part of that sphere. So, center C lies outside the mirror. This C is called the center of curvature. Next is radius of curvature. PC is called the radius of curvature as shown you above. PC, it is the radius of curvature and is the radius of the sphere. एक्चुअल में ये स्फीयर का रेडियस ही होता है जिस स्फीयर का ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट की तरह होती है, उसी स्फीयर का ये रेडियस होता है. इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं ऑफ द मिरर. स्फेरिकल मिरर कह सकते हो, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द concave mirror or the convex mirror. CP here is the, in case of the concave mirror, is the radius of curvature. Next is the principal axis, the line passing through the center of curvature C and the P pole of the mirror is called the principal axis. So CP is principal axis. Next is focus, represented by capital F. It is the point on the principal axis at which the rays after reflection from the concave mirror will meet. एक्चुअली मीट करती हैं तो ये रियल फोकस होता है, और अपीयर टू मीट होती हैं जैसा कि कन्वेक्स मिरर के केस में है तो ये वर्चुअल फोकस होता है. जहाँ कहीं एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज हैं वहाँ रियल पॉइंट होता है,
और जहाँ कहीं अपीयर टू मीट होती है वो वर्चुअल होता है। तो यहाँ पर भी रियल फोकस है इन केस ऑफ द कनकेव मिरर, एंड इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इट इज़ द वर्चुअल फोकस। नेक्स्ट है इसमें फोकल लेंथ। द लेंथ represented by small f is half of the radius of curvature, that is the CP. you can say CP की हाफ लेंथ को हम CP की हाफ लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो FP in case of the concave mirror it is the FP, और in case of convex mirror FP is the focal length। क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट है इसमें अपर्चर। MN is the aperture of the mirror। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मिरर का डायामीटर होता है। MN जैसा कि कनकेव मिरर में दिखाया भी गया है, MN is the aperture of the mirror, it is the diameter of the mirror। नेक्स्ट है इसमें फोकल लेंथ F का रिलेशन दिखाया है R के साथ। R is the radius of curvature, so radius of curvature is equal to twice the focal length, और R is equal to 2F। हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि R/2 के इक्वल होती है फोकल लेंथ। नेक्स्ट है इसमें ये कुछ टर्म्स थी इससे रिलेटेड जो यूज़ होनी है हमारी जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इन दोनों के ही केस में जब हम कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन सी साइड पॉलिश्ड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग साइड अगर कनकेव है तो वो कनकेव मिरर है, और अगर उभरी हुई है यानी कि कन्वेक्स साइड है तो उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में यहाँ बना के दिखाया भी आपको, कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। तो इसमें नेक्स्ट आता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्ट जब वेरियस पोजीशंस पर प्लेस किया जाता है उसके बारे में है। इमेज फॉर्मेशन, इन केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए हम कन्वीनियंस के हिसाब से दो ही रे कंसीडर कर सकते हैं, सो दैट टू ड्रॉ द रे डायग्राम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जब ऑब्जेक्ट वेरियस पोजीशंस पर रखा हो, जैसा कि टेबल 10.1 में दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट को 6 डिफरेंट प्लेसेस पर रखा गया है, तो उन केसेस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी और कहाँ होगी, यानी कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी। इसके लिए हम 2 रेज अगर लें तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होगा रे डायग्राम को ड्रॉ करना, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बता देगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड रेज के लिए 2 रेज लेना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना
क्योंकि दो रेज की इंटरसेक्शन से ही इमेज फॉर्मेशन का पता चलेगा, इसलिए एटलीस्ट 2 रेज तो हमें ड्रॉ करनी ही हैं। तो इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। फर्स्ट केस है टेबल 10.1 में इमेज फॉर्मेशन के लिए कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है। ये टेबल आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और इससे रिलेटेड 6 डायग्राम्स होंगे, वो भी आपने ड्रॉ करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बनाने की कि वो बनेंगे कैसे। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ 2-3 केसेस को, उसके बाद आप 6 के 6 केसेस में ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपके 166 पेज पर फिगर 10.7 में ए डायग्राम दिखाया गया है, बुक में देख सकते हैं आप। इसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ए बी ऑब्जेक्ट है और उसे इन्फिनिटी पर रखा गया है, तो उससे पैरेलल रेज आ रही हैं। ये पैरेलल रेज जो कि 2 ली गई हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, और ये दोनों ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज ली गई हैं, वो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर मीट एट पॉइंट एफ, वो पॉइंट एफ पर मिलती हैं, इसलिए इमेज एफ पर बनती है और ये इमेज रियल होगी क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज है। रेज एक्चुअल में मीट कर रही है पॉइंट एफ पर, क्योंकि इमेज हमें दिख भी रही है, पॉइंट साइज इमेज है, डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से बन रही है इमेज, तो ये रियल इमेज है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट द फोकस पॉइंट पर बनी है इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या है, अभी बताया मैंने, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज कह सकते हो, बहुत छोटी। हाईली डिमिनिश्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी। पॉइंट साइज समझते हो, पॉइंट जितनी छोटी सी, उसका पॉइंट जैसा ही बस साइज होगा। नेचर कैसी है इमेज की, रियल है, जैसे मैंने बताया अभी कि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज है। रियल जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आप टेबल में से देख सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे टेबल को, और इस इमेज को साथ में नीचे 6 की 6 टेबल बनाने के बाद 6 की 6 इमेजेस को ड्रॉ भी करेंगे। नेक्स्ट है इसमें, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना रख के बियॉन्ड सी रखा गया। सी कौन सा पॉइंट है, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, उसका सेंटर इस मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी का मतलब है सी से परे का मतलब है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सी के लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ। आप देख सकते हो बी पार्ट में, फिगर 10.7 के बी पार्ट में देखेंगे आप, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, के बीच में बनी है इमेज। ऑब्जेक्ट ए बी को हमने सी के बियॉन्ड रखा है। एक इसमें से पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस शो की है, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ए सी रे एन पॉइंट पर मीट करती है मिरर के ऊपर, जो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम डायरेक्शन में। तो ये दो रेज, एक ए एम आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from F meet with the ray AN at point A dash, यानी कि A dash B dash is the image of object AB. तो this is the second case
हम क्या देखते हैं इसमें, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बियॉन्ड सी रखा है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, जैसे मैंने बोल के बताया आपको। साइज ऑफ इमेज कैसा है, देख लो दिखने में कैसा है आपका, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड साइज है, यानी कि छोटी है इमेज, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से है, तो इसलिए ये रियल इमेज है। और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, दिख भी रही है, ए डैश बी डैश इज इन्वर्टेड है, उल्टी नीचे की तरफ बनी है, जबकि ऑब्जेक्ट ए बी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये सेकंड केस है। इन केस ऑफ सी, यानी कि थर्ड केस में, एट सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सी, उस केस में भी ऐसा ही होगा, सी पर इमेज बन जाएगी। मैं आपको अब एक एफ केस बता रही हूँ जो कि लास्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ पर रखेंगे हम, पी और एफ के बीच में रखेंगे, कहने का मतलब है पी और एफ के बीच में, यानी कि ए बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फिगर 10.7 में देख सकते हो आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए बी बिटवीन एफ एंड पी के बीच में जब हमने रखा है उसे, तो हम इसकी इमेज कहाँ पाते हैं, मिरर के बैक साइड पर, ए डैश बी डैश। ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली रेज तो मिरर के अंदर से जाएंगी नहीं, वहाँ मिरर से जो दो रे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक AC रे M पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि C से गुजरने वाली रे जो है वो अनडेविएटेड होती है, वो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाती है, तो CM है। और दूसरी जो रे है वो AP पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट हुई है, और PN के डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो AP PN के डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्ट होकर रे आई है, तो ये CM और PN रेज को अगर बैकवर्ड बढ़ाया जाए तो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसी लग रही है जैसे कहीं से आ रही होती हैं, और ये आ रही हैं का मतलब क्या है, हम जब इनको डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करके देखते हैं बिहाइंड द मिरर, तो हम देखते हैं पॉइंट ए डैश पर ये हमें मीट होती नज़र आ रही हैं, जैसे वहाँ से आ रही हैं। तो ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज नहीं है, बल्कि दिस इज़ द अपीयरेंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रेज है। तो इसलिए ए डैश बी डैश इज द image of AB object. So these are the 6 cases.